Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Sana Nawazish, and in this video I am going to talk about another interesting perspective, or you may say concept or theory. And why is it going to be interesting? Because it is very relatable with your daily life. After completing this video, you would be able to relate this concept with different things that you observe around you in your society. So let's take a start. In 1959, C. Wright Mills published The Sociological Imagination, in which he presented this concept, namely sociological imagination. It is basically an approach to social problems. It is a concept that goes beyond individual level, and it relates every social problem or every situation not with individual factors but with social factors, but with the structure of the society in which a person is present at a time. It is an approach when you have understood it well. It is an approach that makes you able to view your society as an outsider. How and why? Whenever you are involved in a particular situation, as you cannot see every aspect of that situation because you are yourself trapped in a particular situation, so you cannot make a rational decision. बट आप अगर उस सिचुएशन को एज एन आउटसाइडर एग्जामिन करते हैं, so you are able to see every aspect of that situation and make a rational decision at that time. It is an approach that makes you able to understand the relationship between individual and the wider society. It is an approach that says that many of the problems that people face in a society are not linked to their individual factors but are actually linked with the structure of society and many social rules and social factors. It is an approach that makes you understand it how your biography, it means your individuality, is linked or is related with the structure of society and the history of society. How? Let's see few examples. First of all, here you are seeing an elephant. इसके आसपास डिफरेंट लोग मौजूद हैं और उनकी आइज़ कवर्ड हुई हुई हैं. आइज़ कवर्ड होना ये सिम्बलाइज कर रहा है दैट दे आर अनअवेयर, दे आर अनकॉन्शियस अबाउट द रियलिटी. सो उन लोगों को अपने सामने जो चीज़ फील हो रही है वो उसे वही नाम दे रहे हैं. जैसे अगर उसके हाथ में एयर आता है तो वो उसे फ़ैन का नाम देता है, अगर उसके हाथ में ट्रंक आता है तो वो उसे स्नेक का नाम देता है, अगर उसके हाथ में टेल आती है तो वो उसे रोप का नाम देता है. मीन्स उसे सामने जो चीज़ फील हो रही है वो उसे वही नाम दे रहा है, क्योंकि वो एज एन आउटसाइडर नहीं देख रहा, वो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है. बट अगर आप अपने आप को देखें एज यू आर सीइंग इट ऑन योर स्क्रीन, so you are able to analyze that it is actually an elephant, and you are able to analyze that all the individuals present in the image are wrong. क्योंकि वो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है इसलिए वो देख नहीं पा रहे कि पूरी एक्चुअल पिक्चर क्या है. बट आप एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं, सो यू कैन सी एवरी आस्पेक्ट. दिस इज़ व्हाट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सेज. ये अप्रोच कहती है कि एक इंडिविजुअल जब एक सिचुएशन में या एक प्रॉब्लम में को फेस कर रहा होता है तो वो हर चीज़ को नहीं देख पा रहा होता. डैट इज़ वाई वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, वो समझ नहीं सकता उस चीज़ को इन अ बेटर वे. लेकिन जब आप इस अप्रोच को अप्लाई करके एज एन आउटसाइडर देखते हैं तो आप सारे आस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं और वहाँ पे यू कैन मेक अ राइट डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कार्निवल है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्लेस पे कार्निवल अरेंज किया जाता है. अब उस कार्निवल में डिफरेंट लोग अपनी तरह से एक्ट आउट कर रहे होते हैं. जो बच्चे हैं दे वुड सी इट एज अ सिंबल ऑफ इंजॉयमेंट. जो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बेचने के लिए लोग आएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे लिए ये सोर्स ऑफ प्रॉफिट है, सोर्स ऑफ बिजनेस है. वहाँ पे जो और डिफरेंट लोग आएंगे वो उसे डिफरेंट वे में देखेंगे, लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट उसे एज एन आउटसाइडर देखेगा बाय अप्लाइंग दिस अप्रोच, और वो एक सेंटेंस में आंसर दे देगा, एक कंक्लूजन दे देगा कि इट इज़ अ सोशल सेटिंग, दिस पर्टिकुलर कार्निवल इज़ अ सोशल सेटिंग इन विच people are gathered so that their bonds are strengthened and people do have an opportunity to earn as well. कुछ इस तरह से करके. फिर इसकी और एग्जांपल्स अगर देखें, एक इंडिविजुअल अगर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे डिफरेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स रिलेट कर दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होगा वो यू कैन एनालाइज बाय अप्लाइंग दिस अप्रोच.
अगर आप एज एन आउटसाइडर देखेंगे तो हो सकता है आपको ये पता चले कि सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसने एक नेगेटिव वे की तरफ जाने का सोचा, सो दैट ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, सो दैट ही कैन अर्न हिज लिविंग, सो दैट ही कैन रन हिज फैमिली। सो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे होते हैं, पर उसके पीछे इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि आप अगर उसे एज एन आउटसाइडर देखें तो कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट इंडिविजुअल टू बी इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक स्टूडेंट है जो कि अपना स्कूल छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो गई और अब उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया और आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे है। जिस स्कूल से वो आई है उस स्कूल में बहुत फैंसी ड्रेसिंग करनी थी, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जाना था, और जिस स्कूल में वो अब आई है वहाँ पे इतनी फैंसी ड्रेसिंग का ट्रेंड नहीं है। तो जब वो वेल ड्रेस होकर गई, स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया, उस पर कॉमेंट्स पास किए और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आई है और उसकी मदर उससे पूछ रही है हाउ वाज योर डे, एंड इट वाज टेरिबल अकॉर्डिंग टू हर। शी इज़ नॉट बीइंग एडजस्टेड एट अ स्कूल। अब अगर वो उस स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, उसके पीछे उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं है, बल्कि वो सोशल फैक्टर्स हैं जो उससे कुछ और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट से आई है उसकी डिमांड कुछ और थी। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करें इस अप्रोच को, अगर आप रिलेट करें, तो आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर कहीं पे एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे भी कुछ सोशल फैक्टर्स हैं। जिस एनवायरनमेंट से वो आई है उसने कुछ और डिमांड की थी, अब किसी और इन्वायरमेंट में गई है तो वो उसी तरह से एक्ट आउट कर रही है, बट अब उसे अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा सो दैट शी कैन बी अकोमोडेटेड ओवर देयर, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उससे कुछ और डिमांड कर रहा है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर फीमेल्स ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करती हैं, अगर इंजेक्शंस लगवाती हैं, फेयरनेस के टैबलेट्स लेती हैं, इसके पीछे उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स की बजाय वो सोसाइटी है जो उन्हें बताती है कि वाइट कॉम्प्लेक्शन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। अगर बॉयज़ जिमिंग करते हैं तो उसके पीछे इंडिविजुअल फैक्टर्स की बजाय सोशल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी है जो उसे बताती है दैट दिस जिमिंग एज अ सिंबल ऑफ हैंडसमनेस। आपकी फटीग, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए सो दैट आप हैंडसम नज़र आए, एंड दीज ऑल आर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ हैंडसमनेस सो दैट बॉयज़ गो टूवर्ड्स जिम्स। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी एग्जांपल ज़रूर बताइएगा, कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें आप इन्वॉल्व हैं और उसमें आपके इंडिविजुअल के बजाय सोशल फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जो आपको लगता है कि सोसाइटी की डिमांड की वजह से आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं। या फिर आप कोई ऐसी एग्जांपल भी शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू डू दैट, एंड इफ़ यू डोंट डू दैट यू आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। लास्ट में हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। वाई इज़ दिस पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट? वैसे तो आप अब तक इस पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे, दैट इट इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रियलिटी ऑफ सोसाइटी, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सोशल रूल्स एंड सोशल फैक्टर्स। ये ऐसी अप्रोच है दैट मेक्स यू, दैट रिलीव्स यू पीपल, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि आप अगर एक सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट अलोन एट दैट प्रॉब्लम, बल्कि उस प्रॉब्लम को फेस करने वाले आपकी सोसाइटी में और लोग भी हैं, क्योंकि उसका रीज़न सोशल फैक्टर्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई वांट टू ईट फ्रेंच फ्राइज़ और मैं अपने फेवरेट जगह के फ्रेंच फ्राइज़ खाना चाह रही हूँ और मैं लेके आना भी चाह रही हूँ, पर बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गेट दैट। सो इसके पीछे क्या मेरे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं? क्या मैं एफर्ट नहीं कर सकती? क्या मैं जा नहीं सकती लेने के लिए? क्या मैं मंगवा नहीं सकती? बट बाहर सोसाइटी में ही कर्फ्यू लगा हुआ है। आप अभी पैंडमिक की एग्जांपल ले लें। लास्ट टाइम में रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे। यू वांटेड टू गो टू द रेस्टोरेंट्स, आप चाहते थे कि आप कोई फास्ट फूड खाएं, आप अपना फेवरेट फूड खाएं या ऑर्डर करें, बट बाहर ऐसी सिचुएशन थी दैट यू कैन नॉट गेट द थिंग दैट यू एक्चुअली वांट। आप चाह रहे हैं बट उसके पीछे इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं है, सोशल फैक्टर्स हैं। बाहर सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप यू कैन नॉट गेट दैट थिंग। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। आई होप you all got this perspective and you enjoyed the video. Kindly share your feedback in the comment section. Till then, take care and have a good time.